نہیں دیکھیں وہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے. ہی از obviously on his way to the UN as well. تو انہوں نے ایک بڑی راؤزنگ قسم کی اسپیچ دی تھی پورا یہ عوام نے اوورسیز پاکستانی, مگر اس کے ساتھ انہوں نے بہت ہی تحمل کے ساتھ یہ ان کا ایک پیغام جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھا آخر میں آ کے کہ چین اور امن کے ساتھ وہ پورے نیبرہڈ میں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں. اور جو اس وقت جو ہوئی تھی جنگ دونوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اس کا اگر ایک صحیح اور اچھا نتیجہ ہونا چاہیے کہ جو خرچے ہوتے ہیں دفاع پہ اور ڈیفنس پہ, کہ وہ خرچے جو ہیں ایجوکیشن کی طرف اور جو عوام ہے جو غریب ہیں ان کی طرف وہ خرچہ دیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ یوٹی حکومت کی سینئر ترین پوزیشن پر رہے ہیں, ہائیسٹ پروفائل پاکستانی, ون آف دی ہائیسٹ پروفائل منسٹرز بھی رہے. اس وقت آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے پاکستان کا پورٹ فولیو بھی ڈیل کیا اس وقت, خاص طور پہ جو پچھلے دنوں میں پاکستان نے جنگ جیتی ہے اس کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کا جو یہاں پر جو اسٹینڈنگ ہے یو کے پاکستان ریلیشن, اور اس کے علاوہ یورپ سے امریکہ سے کہاں کھڑے ہیں آپ کے نظر میں؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو اسٹینڈنگ ہے, میں سمجھتا ہوں اسحاق صاحب نے جو اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا اکانومی کے حوالے سے, اگر کوئی ملک نے آگے بڑھنا ہے ان کو اپنی اکانومی اپنے ملک کی طرف توجہ دینی بہت ضروری ہے. تو اس لحاظ سے جو انہوں نے توجہ دلوائی تھی انفلیشن کی طرف, جو ریٹس ہیں جی ڈی پی کے اگر دیکھا جائیں گروتھ کی طرف, انویسٹمنٹ, وہ ان کا پیغام میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہوتی ہے وہ ملکوں کی طرف دیکھتی ہے. دوسری چیزیں انٹرنیشنل الائنسز, اس وقت اس کا بھی ذکر وزیر اعظم نے کیا تھا جو سعودی کے ساتھ ابھی ڈیل کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس وقت اسٹینڈنگ یو کے میں بھی, یورپ میں بھی اور دنیا بھر میں ایک بڑی پاورفل اسٹینڈنگ, مگر اسی طرح آپ کو اپنے گھر کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جو آزادی ہے, جو مذہبی آزادی ہے, جو سیاسی آزادی ہے, میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کو ایک اور فوکس لانا چاہیے, اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. ہر پاکستانی جو ہے اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں یہی امید رکھتا ہوں, دعا رکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیار اور محبت کا رشتہ قائم ہو. So that was the main thing, being down to earth and being more civilized. میں آپ کی باتوں سے سن کے یہ سوچ سکتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے پرائم منسٹر نے. That's true. I think it was more like not like a prime minister there and then we are here. It was more like one-to-one connection rather than. لیڈیز کتنی تعداد میں موجود تھی؟ Ladies کافی تھی. There was about 40, I would say. Okay. Thank you. آپ نے کچھ انہوں نے بہت جلدی یہ بات بدلی تھی اور کہا کہ میں ان زنانیوں کی بات کر رہا ہوں جو 1965 میں تھی. ہماری لڑائی ہو جانی تھی, نہیں وہ ہماری بات نہیں کر رہے تھے, وہ پرانی عورتوں کی بات کر رہے تھے. آئی ایم شیور تیسرا کنونشن ہے جہاں اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کی مسلح افواج اور گورنمنٹ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, اسپیشلی پرائم منسٹر سے. سو اوبیسلی It was a wonderful get together. اچھا پاکستانی اکٹھے تھے ایک روم میں اور we could feel the passion, ساروں کی unity. ہم سب اکٹھے تھے. We were here to hear about our country, hear about our people. ہم لوگ کیسے آگے چلیں گے, ساتھ کیسے رہیں گے, اور how to represent ourselves and how to gain that trust back from everybody, and how to be seen together and be respected and be recognized for everything that we have done together. So I think it was an amazing initiative as a get together where we all could come together, we could hear our leaders, we could hear their plan, and we could see what's going on and be confident that we are not alone here. We are backed up by our country, we are backed up by our people. So I was so pleased to see everybody. Thank you. کہاں ہو گیا اور وہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہم نے کبھی سیلیبریٹ کیا ہی نہیں ہے. جب بھی ہوئی ہے بات, کوئی نہ کوئی ایشو ہے, تو آج ہم نے پہلے دفعہ سیلیبریٹ کیے جو ہم بنیادی محسوس کو, جو کہ یقین کریں کہ اس سے ہسٹورک تھنگ. اور آئی تھنک وی شوڈ سیلیبریٹ اینڈ وی شوڈ گیو upper hand to the government, what they're doing, what they've done so far strategically. Field Marshal Asim Munir sahab ka huge role. So really راج تحسین کے مستحق ہیں شہباز شریف صاحب اور اپنے آصم منیر صاحب. اس موقع پہ میں سید قمر رضا صاحب کا اگر نام نہیں لیتی تو میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ. الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام جو اوورسیز کا تھا بہت اچھا پروگرام تھا اور بڑی تعداد میں اوورسیز نے شرکت کی, اور انشاءاللہ اگر اسی طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں گے تو اوورسیز کے مسائل آ گئے. آپ یورپ سے خاص طور پہ آئے تھے اس آج کے ایونٹ کے لیے؟ جی, یورپ سے آپ خاص طور پہ اسپین سے آیا تھا اسپیشلی سے. کتنے لوگ آئے وہاں سے؟ ہم تقریباً 10 آدمی تھے. اچھا, کیسا رہا اندر؟
बहुत अच्छा मजा आया? जी बहुत अच्छा खाना था, वज़ीर साहब ने बहुत अच्छी तरीके की और ओवरसीज के दिल जीत लिए। हमें आज बड़ी खुशी हुई उनकी तकरीर सुन के। मियां शहबाज साहब ने ओवरसीज को जो पैगाम दिया है हमें बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह ओवरसीज के मसाइल मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में याद होंगे। पाकिस्तान को कहां से उठा के कहां पैदा कर दिया, आपको सबूत पेश करते हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ एक चीज चाहते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बात करे। कोई बंदा हो जो पाकिस्तान को उठाने की बात करे, हम ओवरसीज उसके साथ हैं और मरते तब तक साथ रहेंगे। मैं इस चीज का सारा क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी के जवानों को जिन्होंने शहादत दी, जो शहबाज शरीफ साहब ने बच्चे का जिक्र किया और उन्हें बताया वो मासूम बच्चे की आंख, जब वो उसको देखा उसकी डेथ बॉडी को, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपको सूट पेश भी कर रहे थे, बिल्कुल को क्या मैसेज है उनको। सर देखें, इमरान साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली दफाका विद सऊदी अरेबिया, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये बहुत अच्छी बात है और ये दिखाता है कि पाकिस्तान का लेवल अब क्या है। तो जैसे कहते हैं कि इकबाल साहब ने कहा था कि हवा उठती है आपको बढ़ाने के लिए, तो उसका ये है बेसिकली कि जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने समझा कि हम पाकिस्तान को ज़रूर कर देंगे। यहाँ जो पाकिस्तान फौज ने और सियासी सत्ता ने इकट्ठा होकर जो काम किया है, सबसे ज़रूरी ये है कि जब तक पाकिस्तान एक यफ्ता है तो हर एक सक्सेस पाकिस्तान के लिए। जब हम टूटेंगे तो हमारे लिए कोई मजबूत नहीं। थैंक यू। बड़ा बिजी था आज, काफ़ी लोग आए यहाँ पर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की है ओवरसीज़ के लिए, और ओवरसीज़ को कहा है कि आप हमारा सरमाया हैं, पाकिस्तान के लिए असासा हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान के लीडर ओवरसीज़ की जो काम है उसको रिकगनाइज करते हैं, और ये एक अच्छा इकदाम है। और स्पेशली ओवरसीज़ के साथ जो उन्होंने रब्ता किया है, आई थिंक स्टेइंग इन टच इज़ रियली गुड थिंग। आपके साथ और कौन सी पार्लियामेंटेरियन थी यहाँ पे? 2-3 और भी थे, लेकिन हम मुख्तलिफ टेबल्स पे थे। सारा का तो शाहरुख का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यास्मीन कुरैशी थी इधर और लॉर्ड कुर्बान साहब। क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ यूके में ऑफिशियल को मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड है? नहीं, हम सब, क्योंकि हम सब अपने हल्कों के अंदर हैं, अपनी कंस्टिट्यूंसीज में हैं। लंदन में कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन में, तो इस लिहाज से कोई मीटिंग अरेंज नहीं हुई। पीएम ने जो एनवायरमेंटल चेंजिंग के हवाले से एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की है कि जो बड़े ममालिक हैं जिनकी एमिशन ज्यादा है और पाकिस्तान जैसे ममालिक है जिनको नुकसान हो रहा है, तो इसके ऊपर पार्लियामेंट में हमने ये पार्लियामेंट में बात की हुई है पहले भी, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है ये जो तब्दीली आई है मालियाती उसमें, उसकी वजह से जो फंसा हुआ है, और हम समझते हैं कि दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। के अंदर भी तक बहाल नहीं हो सकी। ये कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब से जारी है, उनको बेहतर पता होगा, मुझे तो इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि PIA बहाल होगी इंशाल्लाह, उस पर काम हो रहा है। अच्छा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन होते हुए पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपनी पोजीशन, अपने ओहदे के मुताबिक रहते हुए बातचीत की है, तो आपने तो खुद फील किया है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तो आपने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे? आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी जब वो सुन रहे थे PM की स्पीच, तो कैसा रिस्पॉन्स था ओवरसीज पाकिस्तानियों का? जज्बाती थे लोग, जारी है जो इस हाल के अंदर मौजूद हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सपोर्टर होंगे और इस पार्टी के सपोर्टर भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग काफ़ी खुश थे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों से रब्ता किया है, और ये मैं समझता हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान के दिल पाकिस्तान के साथ रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का अच्छा इक़दाम है। वंडरफुल इवेंट, पीपल हैव रिसीव्ड। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को लंदन के ब्रिटिश लोगों ने बड़ा सख्त, बड़ा भरपूर उनका इस्तकबाल किया, और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी जज्बाती तकरीर की, और उन्होंने अपने कारनामे बिलखसूस जो सऊदी अरेबिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जिक्र किया, और जो सफ़र तय किया गया है। आप देखें कि कहाँ एक आइसोलेशन में बिल्कुल पाकिस्तान तनहा था, वहाँ से निकल कर आज जहाँ पहुँच गए आप, एक भरपूर सफ़र है, और मैं समझता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप अमेरिका से खास तौर पर इसी स्पीच के लिए आए थे? मैं बिल्कुल इसी स्पीच के लिए आया था। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आया था, मैं शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने के लिए आया था, मैं फील्ड मार्शल साहब को सपोर्ट करने के लिए आया था, और दूसरा हमारे ट्रम्प साहब भी यहाँ थे, हमारी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ थे, तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम और पीरियड फॉर मी टू बी हियर। इस इवेंट में आ जाए नहीं, आज मैं इस इवेंट में हूँ, लेकिन I'm here since last few days। उसमें था कि क्योंकि I almost came the day when our Prime Minister Trump came। अच्छा, शहबाज साहब न्यूयॉर्क जा रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनकी साइडलाइन पे मुलाकात होगी? Definitely, that is what is going on, और मेरे ख्याल में it will be very good for Pakistan।
और बड़े हम सारे पुरुमीद हैं। उनके साथ सारे कैबिनेट के काफ़ी लोग हैं, उनके साथ ने देखा होगा। मैं समझता हूँ एक बड़ा कामयाब दौरा होगा और जो लोगों को एतराज़ात थे माजी के अंदर वो सारे दूर होंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो कहते हैं एक पेज पे, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने जो किताबें लिख दी हैं, पेज तो बहुत छोटी बात है। सर जो मुआहदा हुआ है सऊदी के साथ, दिफाई मुआहदा पाकिस्तान का, उस हवाले से अमेरिका में क्या तासर पाया जा रहा है? मेरे ख्याल में जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अमेरिका भी जो हमला किया गया था कतर पर, अमेरिका भी उससे खुश नहीं है। और जो मेरे ख्याल में अमेरिका इज़ फाइन विद इट। और मेरे ख्याल में दिस विल बी अ बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक नेटो इन द फ्यूचर।